Good morning, students. Let's start with theory of demand further. Last lecture we people discussed two important topics. One is change in quantity demanded and other one was change in demand. Change in demand. We discussed them in detail. The change in quantity demanded is the change which is caused by change in its own price, and change in demand is the change in demand changes due to response of change in factor other than its own price. This we have already discussed. Change in quantity demanded, today we will go further and discuss its types. Change in quantity demanded is of two types. One is called extension of demand and other one is called contraction of demand. Extension of demand and contraction of demand. Similarly, change in demand is also of two types. One is called increase in demand and other one is called decrease in demand. I'll come again to it. Change in quantity demanded is of two types, that is called extension of demand and contraction of demand, and change in demand is also of two types, that is increase in demand and decrease in demand. Here it is extension and contraction, there the word is increase and decrease. Change in quantity demanded, that is extension and contraction, it is caused due to change in its own price. This also we have discussed. This is caused due to change in its own price, and this is caused due to change in factor other than its own price. Other than its own price. That means अगर डिमांड फंक्शन की डेफिनेशन याद है तो डिमांड फंक्शन में दो तरह के फैक्टर्स थे. एक तो हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया था. वन वाज प्राइस, दैट इज इट्स ओन प्राइस, एंड अदर वाज फैक्टर अदर देन इट्स ओन प्राइस. तो जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है दैट इज कॉज्ड बाय फर्स्ट फैक्टर, दैट इज चेंज इन प्राइस, एंड जो चेंज इन डिमांड है दैट इज कॉज्ड बाय द फैक्टर अदर देन इट्स ओन प्राइस. दैट मीन्स इट कैन बी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन, पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. Now with this we'll proceed with each and every difference. पहला डिफरेंस करेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड. दूसरा डिफरेंस डिस्कस करेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड. एक्सटेंशन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का और इंक्रीज चेंज इन डिमांड का. फिर डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज इन डिमांड के बीच में डिफरेंस, कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज इन डिमांड. बट अगर ये चार्ट समझ आ गया है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कहाँ से उठाया, कौन प्राइस की वजह से और कौन फैक्टर अदर देन इट्स ओन प्राइस की वजह से. लेट्स प्रोसीड विद फर्स्ट डिफरेंस. फर्स्ट डिफरेंस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन demand. Change in quantity demanded and change in demand. Let's proceed it. Change in quantity demanded. Last lecture याद करो, मीनिंग में बताया था change in quantity demanded means when demand changes due to change in its own price. So it is due to, मीनिंग में लिखेंगे when demand changes due to change in its own price, other factor remaining constant. Other factor remaining constant. That means जब डिमांड अपने प्राइस की वजह से चेंज करती है, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट होते हैं, दैट मीन्स सेट्रिस पैरिबस होते हैं, दैट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. नेक्स्ट चेंज इन डिमांड मीनिंग when demand, same definition, सिर्फ उसमें इसमें लिखा था when demand changes due to change in its own price, यहाँ लिखेंगे when demand changes due to change in factor other than its own price. यहाँ other factor remaining constant था, वहाँ price remaining constant आएगा. That is the only difference. Change in demand, when demand changes due to any factor other than its own price. That means price remaining
constant. It can be due to change in price of related goods, it can be due to change in income, change in taste and preferences, change in expectation, change in population and change in distribution of income. That means demand, अगर याद हो तो ये demand function था, price of its own, price of related, income, taste and preferences, expectation, population and distribution of income. ये हमने डिस्कस किया था. तो अगर डिमांड में चेंज अपने प्राइस की वजह से होता है, दैट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. अगर डिमांड में चेंज इन सब फैक्टर्स की वजह से होता है, दैट इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड. That is called change in demand. So first difference between change in quantity demanded and change in demand is meaning. That is, this change is due to change in its own price and this change is due to factor other than its own price. इसमें price remaining, price changes, other factor remaining constant. इसमें other factor changes, price remaining constant. Other than its own price या price remaining constant, it means one and the same thing. Second, types. Second difference discuss करेंगे. Types अभी बताया. Change in quantity demanded is of two types, extension and contraction, and change in demand is of two types, increase and decrease. So it is of two types, extension and contraction, and it is of two types, increase in demand and decrease in demand. Second difference हो गया. Third difference is movement. मूवमेंट का मतलब है कि जब ये चेंज होता है तो डिमांड कर्व पे कैसा चेंज आता है. दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं जो लास्ट लेक्चर में बताए थे. वन इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड द अदर वन इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व. एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होती है. ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, एक बार दोबारा प्रूव करूंगी. इट कॉजेज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. अलोंग द डिमांड कर्व, ये हमारा डिमांड कर्व है. मूवमेंट अलोंग क्या होगी, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, या तो डाउन आएगा या अप आएगा. सो इट कॉजेज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड. एंड इन दिस, इट कॉजेज शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व. शिफ्टिंग का मतलब होता है ओरिजिनल कर्व या तो आगे जाता है या फिर पीछे आता है, आइदर राइटवर्ड शिफ्टिंग और लेफ्टवर्ड. शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व आइदर लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड. ये भी प्रूव करेंगे, अभी शेड्यूल लेके जब इसको प्रूव करेंगे तो साथ में ये बताऊंगी. दैट मीन्स एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होती है. एक में नीचे को होगी और एक में ऊपर होगी. वो अभी जब डाटा और शेड्यूल लेंगे तो मैं आपको समझाऊंगी. इसमें मूवमेंट अलोंग नहीं होती, उसी डिमांड कर्व पे पॉइंट ऊपर नीचे ना जाके देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व. दैट मीन्स पूरा का पूरा डिमांड कर्व, दिस इज द डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिवली स्लोप जो हमने डिस्कस किया था, आइदर आगे को शिफ्ट होता है या फिर पीछे को शिफ्ट होता है. ये भी अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में. अगेन यहाँ पे प्राइस और यहाँ क्वांटिटी, इसको डिटेल में अभी डिस्कस करके फिर बताऊंगी. हियर ऑल्सो प्राइस एंड क्वांटिटी. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड. जब भी डिफरेंस आता है आपको ना तो शेड्यूल शो करना ना ही डायग्राम शो करना है. 3 पॉइंट्स के डिफरेंस में पहला मीनिंग होना चाहिए, दूसरा टाइप्स और तीसरा मूवमेंट. मीनिंग, टाइप्स एंड मूवमेंट. अगर आप शेड्यूल को डिफरेंस में ले लेते हो और डायग्राम को डिफरेंस में ले लेते हो, वो एक्सेप्ट नहीं होगा जब तक पूछा नहीं गया है. तो 3 में मीनिंग, टाइप्स एंड मूवमेंट. और एक और डिफरेंस बना सकते हैं, दिस इज ड्यू टू इट्स चेंज इन इट्स ओन प्राइस एंड दिस इज ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन इट्स ओन प्राइस. दिस इज कॉज ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, दिस इज कॉज ड्यू टू फैक्टर अदर देन इट्स ओन प्राइस. इसमें से कोई भी फैक्टर का नाम आप दे सकते हैं. नाउ लेट्स प्रोसीड एंड डिस्कस द सेकंड डिफरेंस, दैट इज आई टोल्ड यू एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड. एक्सटेंशन है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का पार्ट और इंक्रीज है चेंज इन डिमांड का पार्ट. लेट्स प्रोसीड. नाउ एक्सटेंशन, डिफरेंस करने से पहले मैं आपको एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज का इंडिविजुअल मीनिंग बताती हूँ. एक्सटेंशन, व्हाट डज एक्सटेंशन मीन्स? एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन किसके पार्ट है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के. Change in quantity demanded is of two types. One is called extension of demand and other one is called contraction of demand. What is extension and what is contraction? बच्चे, extension means when demand increases. Extend करना मतलब बढ़ना. When demand increases due to increase
ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स ओन प्राइस, डिमांड बढ़ रही है, एक्सटेंशन मतलब डिमांड बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड कम होना। अब अगर लॉ ऑफ डिमांड ध्यान में हो तो डिमांड कब बढ़ती है, जब प्राइस कम होता है, और डिमांड कम कब होती है, जब प्राइस बढ़ता है। तो बेसिकली एक्सटेंशन मीन्स डिमांड का बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स डिमांड का कम होना। अपने प्राइस की तरह वजह से है तो अपना प्राइस, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है तो एक्सटेंशन में डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कम होगा, कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड कम होगी तो प्राइस बढ़ेगा। सो एक्सटेंशन मीन्स increase in demand due to, remember, due to decrease in its own price. Other factor remaining constant. Other factor remaining constant. That means extension means increase in demand. मैंने already बताया, be very much clear with it. Extension means demand का बढ़ना, contraction means demand का कम होना। Demand कब बढ़ेगी, जब अपना प्राइस फॉल करेगा, other factor remaining constant। अगर extension की definition समझ आ गई तो contraction बिल्कुल इसका opposite। Contraction means decrease in demand, increase की जगह decrease आ जाएगा, due to increase in its own price, other factor remaining constant। It means contraction means डिक्रीज इन डिमांड, यहां इंक्रीज था, वन डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स ओन प्राइस, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डिमांड अपने प्राइस की वजह से चेंज हो रही है। अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट मींस डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स ओन प्राइस, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। एक्सटेंशन में डिमांड को बढ़ाना था, प्राइस गिरेगा। कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड को कम करना था, डिमांड कब कम होगी, जब प्राइस बढ़ेगा। क्यों? बिकॉज डिमांड और प्राइस में एज पर लॉ ऑफ डिमांड कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। नाउ दिस इज मीनिंग, लेट्स सी ये दिखा हाउ इट इज बीइंग शोन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। एक्सटेंशन में मुझे डिमांड बढ़ानी है, डिमांड पहले 10, फिर मैंने डिमांड को बढ़ा के 20। प्राइस से फर्स्ट वन वॉज 1, पहले प्राइस 5 ले लेते हैं क्योंकि गिरना है हमें। डिमांड बढ़ रही है ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स ओन प्राइस, तो प्राइस को कम करके मैंने 1 कर लिया। दैट मीन्स एट प्राइस ₹5, this is schedule, at price ₹5, demand was, quantity demand was 10 unit, as price falls to 1, demand increases to 20। अब इसको definition से मैच करो, means increase in demand, demand बढ़ गई due to decrease in its own price, other factor remaining constant। अब इसको जब हमें diagrammatically express करना है, here price, this is quantity demanded in units, price 1, आई एम रफली टेकिंग द फिगर्स, आप स्केल से इसको पॉइंट्स को प्लॉट करिए। यहाँ पे मैंने 10 लिया और यहाँ 20। प्राइस 1 पे 5 पे पहले डिमांड वॉज 10 यूनिट्स एंड 1 पे 20 यूनिट्स। अब मैं दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगी विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये एक ही डिमांड कर्व पे आएंगे, पहले पॉइंट 5 10 था, अब आ गया, अब पॉइंट आ गया, this is 1 on 20, price 1 पे 20। so it is movement along the demand curve in downward direction। कौन सी मूवमेंट है? उसी डिमांड कर्व पे पॉइंट ऊपर से नीचे आ गया है, what we call it movement along the demand curve, movement along the demand curve in downward direction, in downward direction, मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और अब इसका शेड्यूल, सेम फिगर्स को रिवर्स कर दो, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस के साथ रुपीस, क्वांटिटी डिमांडेड के साथ यूनिट्स। नाउ पहले प्राइस 1 पे डिमांड 20 थी, प्राइस बढ़ गया 5, डिमांड रह गई 10 यूनिट्स। सेम उसी को उसी तरीके से प्लॉट करेंगे, यहाँ 1 और यहाँ पे हमने 5। उसके बाद यहाँ पे बीच में आप 2 3 4 मार्क कर सकते हो, बट मैंने 1 2 3 4 5 1 और 5 चाहिए था तो वो मार्क कर लिया। देन हियर इज 10 यूनिट्स एंड से हियर इज 20 यूनिट्स।
यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स, एक्स और वाई एक्सिस को लेबल करना इट्स कंपल्सरी टू गेट द मार्क्स, प्राइस ऑफ एक्स इन रुपीज़ मैंने शॉर्ट में लिख दिया. नाउ पहला पॉइंट क्या था, 1 पे 20, दैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड है 5 पे 10, प्राइस इंक्रीज करने से डिमांड डिक्रीज हो गई है. सेम कर्व बनेगा व्हेन यू विल जॉइन इट विद द हेल्प ऑफ स्केल. दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे. दिस इज डी डी, दिस इज कॉल्ड एज डिमांड कर्व, नेगेटिवली स्लोप्ड है. पॉइंट पहले ये था दैट इज 1 on 20, अब है 5 पे 10, दूसरा पॉइंट है 5 पे 10. तो दैट मीन्स मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व इन अपवर्ड डायरेक्शन. सेम इसमें मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व इन डाउनवर्ड डायरेक्शन हुई और उसमें मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व इन अपवर्ड डायरेक्शन. इट इज मूवमेंट along demand curve in, I'm using the abbreviations, upward direction. Extension में downward and contraction में upward. बाकी सेम डिमांड कर्व पे है तो इसमें हम वर्ड शिफ्टिंग नहीं यूज करेंगे. मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स प्राइस के इंक्रीज करने से डिमांड डिक्रीज्ड. प्राइस के इंक्रीज करने से डिमांड डिक्रीज. यहाँ क्या था, प्राइस के डिक्रीज करने से डिमांड इंक्रीज. अगेन अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगी एज पर लॉ ऑफ डिमांड. सो पहला मीनिंग, दूसरा शेड्यूल, तीसरा डायग्राम, चौथा पॉइंट मूवमेंट का मैंने आपको बता दिया कि मूवमेंट कैसे होगी. पांचवा बेटा पॉइंट दैट कैन कम इन टू इट इज एक्सटेंशन इज कॉज ड्यू टू, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एक्सटेंशन? इट इज कॉज ड्यू टू increase in demand due to decrease in its own price. It is caused due to decrease in its own price, and this is caused due to increase in its own price. अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. इससे जो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं सारे इसी से बन जाएंगे वंस यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द 4 टर्म्स, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज एंड डिक्रीज. एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन दोबारा बता रही हूँ, दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज आर द 2 टाइप्स ऑफ चेंज इन डिमांड. नाउ पहला मीनिंग, दूसरा शेड्यूल, थर्ड वन इज डायग्राम, फोर्थ वन इज मूवमेंट एंड फिफ्थ वन इज cause, what caused the extension and what caused the contraction. Now next one is difference between change in quantity demanded कर लिया. change in demand के भी 2 पार्ट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके डिफरेंसेस पे आएंगे. change in demand के 2 पार्ट्स हैं, increase और decrease. increase in demand and decrease in demand. Let's discuss them in detail. Increase in demand and decrease in demand. Now फिर से डिमांड फंक्शन की डिमांड फंक्शन की जो इक्वेशन है उसे लिखेंगे. फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ इट्स ओन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. मैंने ये इक्वेशन इतनी बार यूज कर ली है. बाय नाउ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ कि ये क्या है. पी एक्स प्राइस ऑफ इट्स ओन, P are related goods, Y income, TP taste and preferences, E expectation, P population, D distribution of income, D distribution and Y income. Now increase in demand. Let's understand the meaning first. ये change in demand के 2 parts है. Increase in demand means when demand increases. When demand increases due to factor other than its own price. When demand increases, increase तो है, ये तो मतलब बढ़ेगी, extension में भी बढ़ेगी और increase में भी बढ़ेगी. When demand increases due to factor other than its own price, मतलब प्राइस की वजह से नहीं बढ़ रही है, reason is other than its own price. तो अगर मैं इक्वेशन को समझूं तो मतलब इनमें से किसी भी फैक्टर की वजह से डिमांड चेंज हुई है. Related good, income, taste and preferences, expectation, population and distribution of income. When demand increases due to factor other than its own price, its price remaining constant. Decrease in demand, when demand decreases due to factor other than its own price. Due to factor other than its own price, price remaining
कांस्टेंट, उसमें फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट ले रहे थे, इसमें इट्स ओन प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट. डिमांड इंक्रीजेस ड्यू टू फैक्टर अदर देन इट्स ओन प्राइस, डिमांड डिक्रीजेस ड्यू टू फैक्टर अदर देन इट्स ओन प्राइस. अभी फैक्टर्स भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. एट द मोमेंट ये मीनिंग हो गया. अब कैसे होता है इंक्रीज इन डिमांड? जो डिमांड फंक्शन में पहला फैक्टर था प्राइस ऑफ आर वाई टी पी ई, हम इन्हीं के साथ फैक्टर्स बनाएंगे. रिलेटेड गुड्स दो तरह की होती हैं, वन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री. इनकम के अकॉर्डिंग गुड्स दो तरह की होती है, वन इज कॉल्ड नॉर्मल एंड अदर वन इज कॉल्ड इंफीरियर. नॉर्मल एंड इंफीरियर. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फेवर, अगेंस्ट, एक्सपेक्टेशन, rise in price, fall in price. Now, how to find out the reasons for increase in demand? Substitute के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, वी डिस्कस. कॉम्प्लीमेंट्री के साथ इनवर्स होता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. नॉर्मल गुड का इनकम के साथ डायरेक्ट होता है और नॉर्मल गुड का इनकम के साथ, इंफीरियर गुड का इनकम के साथ इनवर्स होता है. फेवरेबल में डिमांड बढ़ती है, अगेंस्ट में डिमांड कम होती है. प्राइजेस फ्यूचर में राइज करेंगे तो डिमांड एट प्रेजेंट फॉल करेगी, राइज करेगी. प्राइजेस फ्यूचर में राइज करेंगे तो डिमांड एट प्रेजेंट राइज करेगी. प्राइजेस फ्यूचर में फॉल करेंगे तो डिमांड एट प्रेजेंट फॉल करेगी. ये हम लोगों ने ऑलरेडी जब फैक्टर्स डिस्कस किए थे डिटेल में, वो डिस्कस किया हुआ है. नाउ इंक्रीज इन डिमांड के फैक्टर्स क्या होंगे? इस इक्वेशन से हम फैक्टर्स बनाएंगे. हम ये कह रहे हैं गुड की डिमांड बढ़ रही है, रीजन इज नॉट द प्राइस, प्राइस रीजन नहीं है, इनमें से कोई फैक्टर है. इन केस ऑफ, अगर ये इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसके सब्स्टिट्यूट का क्या हो रहा होगा? इसकी डिमांड बढ़ रही है तो सब्स्टिट्यूट का प्राइस, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड प्राइस इंक्रीज हो रहा होगा. डायरेक्ट रिलेशन है. इस गुड की डिमांड बढ़ रही है तो सब्स्टिट्यूट का प्राइस भी क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा. राइज इन प्राइस इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. इसको चेंज करेंगे, राइज इन प्राइस अगर ये सब्स्टिट्यूट गुड के साथ है. सब्स्टिट्यूट गुड, इसकी डिमांड बढ़ रही है, कॉम्प्लीमेंट्री के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो ये बढ़ रही है, इंक्रीज बोल दी है, तो कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस क्या हो रहा होगा? गिर रहा होगा. सो फॉल इन प्राइस इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड. तभी मैंने आपको बोला कि इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन से ये रीजन बनाने बहुत इजी हो जाएंगे. ये क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जाएगा, विल कम टू दैट ऑल्सो, कि दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन मेनी फॉर्म्स. सो फॉल इन प्राइसेस इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कम टू इनकम. अगर ये नॉर्मल गुड है तो इंक्रीज इन इनकम डायरेक्ट रिलेशन है. इंक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ नॉर्मल गुड एंड डिक्रीज इन इनकम, इनवर्स रिलेशन है, इसकी डिमांड बढ़ रही है, वो हमने पहले कह दी है, तो डिक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ inferior goods. I'll come to it again. Inferior goods. नेक्स्ट रीजन, फिफ्थ, यहाँ इंक्रीज इन डिमांड ही कंटिन्यू कर रहे हैं. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, डिमांड बढ़ रही है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस गोज इन द फेवर ऑफ प्रोडक्ट, गोज इन फेवर ऑफ प्रोडक्ट. सिक्स्थ, एक्सपेक्टेशंस, गिवन गुड की डिमांड बढ़ रही है, इंक्रीज इन डिमांड है, तो एक्सपेक्टेशन, प्राइस, अभी डिमांड बढ़ रही है क्योंकि प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला होगा, ड्यू टू राइज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर. चीज आने वाले समय में महंगी होने वाली है, इसीलिए कस्टमर ने उसकी डिमांड एट प्रेजेंट बढ़ा दी है. आई विल कम टू इट अगेन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर. मैंने डिटर्मिनेंट सारे लिख लिए अदर देन इट्स ओन प्राइस, बिकॉज इंक्रीज इन डिमांड इज कॉज बाय द फैक्टर अदर देन इट्स ओन प्राइस. मैंने प्राइस को क्रॉस किया, इनमें से किसी फैक्टर से है. फिर मैंने आपको ये बताया कि इनको हमने जैसे जैसे डिस्कस किया था, मैंने एरो लगा ली है. जब दोनों एरो सेम डायरेक्शन में जाते हैं दैट मीन्स डायरेक्ट रिलेशन, एरो ऑपोजिट में जाते हैं इनवर्स रिलेशन. अब सब्स्टिट्यूट का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का इनवर्स होता है. नॉर्मल गुड्स का इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, नॉर्मल गुड का इनकम के, इंफीरियर गुड्स का इनकम के साथ इनवर्स रिलेशन होता है. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फेवर और अगेंस्ट में जाते हैं, एक्सपेक्टेशन राइज और फॉल. पहली बार जब इक्वेशन से लिखेंगे तो इजिली याद हो जाएगा, और जब दोबारा आप बनाना शुरू करेंगे तो आप इक्वेशन की जगह डायरेक्टली भी रीजंस आ जाएंगे, बिकॉज तब आपके माइंड में सेट हो जाएगा सब्स्टिट्यूट डायरेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्स होता है, नॉर्मल डायरेक्ट होता है, इंफीरियर इनवर्स होता है. नाउ कैसे बनाएं? इंक्रीज इन डिमांड के रीजंस क्या हो सकते हैं? फैक्टर्स की जगह बेटर वर्ड आएगा रीजंस.
इट कुड बी, क्या क्या पॉसिबल रीजन है? राइज इन प्राइस इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट, डायरेक्ट रिलेशन है। फॉल इन प्राइस इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, गिवन गुड की डिमांड बढ़ रही है तो सब्स्टिट्यूट की डेफिनेशन में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, सब्स्टिट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशन था विद राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट डिमांड ऑफ गिवन गुड इंक्रीजेस। तो मैंने गिवन गुड की डिमांड इंक्रीज कर दी है तो सब्स्टिट्यूट का प्राइस क्या हो रहा होगा? राइज। कॉम्प्लीमेंट्री में इनवर्स रिलेशन है तो फॉल इन प्राइस इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, राइज इन प्राइस इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट, फॉल इन प्राइस इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। नॉर्मल के साथ इनकम का डायरेक्ट रिलेशन है, गिवन गुड की डिमांड बढ़ रही है, अगर ये नॉर्मल गुड है तो इनकम बढ़ रही होगी, और अगर ये इंफीरियर गुड है, इनवर्स रिलेशन है, इसकी डिमांड बढ़ रही है तो इंफीरियर गुड के केस में इनकम कम हो रही होगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फेवर में गए होंगे तभी कंज्यूमर ज्यादा खरीद है, और राइज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर, कंज्यूमर को लग रहा होगा कि आने वाले समय में ये चीज़ महंगी होने वाली है, इसीलिए उसने एट प्रेजेंट इस गुड की डिमांड को बढ़ा दिया है। अगर हमें पता है आने वाले समय में गोल्ड महंगा होने वाला है तो वी विल परचेज मोर ऑफ द गोल्ड एट प्रेजेंट बिकॉज फ्यूचर में ये हाई प्राइस पे मिलेगा। अब इसको अगर शेड्यूल की हेल्प से दिखाना है, हाउ विल मेक अ शेड्यूल ऑफ द सेम? प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स ऑफ एक्स, प्राइस, रीजन इज नॉट द प्राइस, तो प्राइस को मैंने कांस्टेंट 10 लिया, क्वांटिटी डिमांडेड पहले 10 थी और अब 20 यूनिट्स। अंडरस्टैंड द शेड्यूल। सेम प्राइस पर द डिमांड हैज इंक्रीज बिकॉज द रीजन इज नॉट द प्राइस, रीजन इज अदर देन इट्स ओन प्राइस। अदर देन इट्स ओन प्राइस में हमने इतने सारे रीजंस डिस्कस कर लिए हैं। सब्स्टिट्यूट के केस में अलग होगा, कॉम्प्लीमेंट्री के केस में अलग होगा, एंड सो ऑन। अब अगर इसको डायग्रामेटिकली दिखाना चाहें, price on y-axis in rupees, quantity demanded in units on x-axis, price मैंने 10 लिया, quantity demanded 10 and 20, दो दिखानी है, 10 और ये प्राइस 10 पे ही क्वांटिटी डिमांडेड 20। अब इस डायग्राम में डिफरेंस देखिए बेटा, किसी भी तरह से ये दोनों पॉइंट्स एक ही कर्व पर नहीं आ सकते, सो इट कॉजेस शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। जो ओरिजिनल डिमांड कर्व था 10-10 वाला, अब वो 10-20 पे आगे चला गया, तो इट कॉजेस शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व टू द राइट। इट कॉजेस शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व टू द right. So what's the movement? It is shifting of the demand curve to the right. Reason is other than its own price. दोबारा से increase in demand अभी डिस्कस किया है। When demand increases due to factor other than its own price, factors कौन से होंगे? Factors या reason मैंने बोला, rise in price in case of substitute, fall in price in case of complementary and so on. तीसरा, इसमें शेड्यूल सेम प्राइस पे डिमांड बढ़ रही है, दैट मीन्स रीजन इज नॉट द प्राइस, इट इज अदर देन इट्स ओन प्राइस। मूवमेंट कैसी है? इट कॉजेज शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व टू द राइट। इसमें मूवमेंट अलोंग नहीं है, इट कॉजेज शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व टू द राइट। With this we finish one part of change in quantity change in demand, that is increase in demand. अगर increase in demand अच्छे से समझ आ गया है तो decrease in demand याद करना, समझना उतना ही easy हो जाएगा। That will discuss in the next lecture कि decrease in demand कैसे होता है।